हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड इट इज़ द लेबर इंटेंसिव एंड द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ये बहुत बार आप इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर today's introduction. What are labor intensive industries? देखिए, industries are two types. First is capital intensive, another is labor intensive. So labor intensive industries वो होती हैं जहाँ पे आप humans को ज़्यादा use करते हैं, where humans are more used. किसी भी फैक्ट्री में if humans are more used, that industry is known as labor intensive industry. वहाँ पे machines भी use होते हैं, but machines are very few. So our more focus is on humans. We tend to have more humans in such industries. All right. Okay. So what are the features of these industries? First of all, high employment generation, because you tend to have more people working. You tend to create more jobs, and it uses low machines. Low machines are used. That means very less machines are used here. More people are used. ओके, एंड सिंस मशीन्स इसमें बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इसमें आपका जो कैपिटल यूज है, पैसे की इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो लो. You do not require much capital investment here, and it is suitable for developing country. Why it is suitable for developing countries? For a very simple reason that developing countries में population बहुत ज़्यादा होती है, एंड दीज डेवलपिंग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन होती है उनमें स्किल्स उतनी नहीं होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट देम इन दीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. ऑलराइट, सो what are the advantages of these labor intensive industries? The first advantage is that it will help us reduce unemployment, because you will try to have more and more people working for you, and since unemployment कम हो जाएगा तो ultimately it will reduce poverty. It will promote the inclusive growth. So inclusive growth simply means that the benefits of the growth, it should reach to those which are away from the that journey of growth. It is simply, I'll give an example. See, देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है. इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? एक क्विक ओवरव्यू में आपको देता हूँ. जब भी आपको वर्ड ग्रोथ दिखेगा, इट मींस एन इंक्रीज इन जीडीपी, right? When GDP increases, it ultimately means the companies are making more goods and services. जब goods and services ज़्यादा बन रहे हैं, that means you are earning more money. So inclusive growth means इस growth का benefit जो है, what is the benefit? Earning money, creating more jobs. It should reach to the other sections of society, other sections of society, yeah, vulnerable sections of society, like SCs, STs, OBCs, women, rural areas. Okay, अगर इन तक बेनिफिट्स पूछते हैं, किसके बेनिफिट्स? जीडीपी के बढ़ने के. तो क्या होते हैं जीडीपी के बढ़ने के बेनिफिट्स? इनकम बढ़ जाती है, जॉब्स बढ़ जाते हैं, और अगर ये बेनिफिट्स यहाँ इन लोगों तक भी पहुंचते हैं, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. ये इंक्लूसिव ग्रोथ आप तभी कर सकते हैं अचीव इफ यू हैव इंडस्ट्रीज दैट विल हैव मोर एंड मोर पीपल इनटू देम. ओके, ऑलराइट. So it will also utilize your abundant labor. Abundant labor मतलब इंडिया में, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, you will see that there are more number of people who do not have the jobs, people without jobs. Okay, so you have to create more jobs by using labor intensive industries, and it will support your rural areas also. See, labor intensive industries are very good for economy, but there is certain problem associated with this. The problem is that the problem is that labor intensive industries में, याद रखेंगे आप, we use more people. हम humans को ज़्यादा importance देते हैं, and we use less machines. We use less machines.
Okay, since machines are very less, maximum job is done by the people, it will have low productivity. आपके number of units per day बहुत कम होते हैं, low wages होते हैं इसमें, and less global competitiveness. Less global competitiveness का मतलब ये होता है that when you produce less number of goods, you will not be able to export more. जब आप export नहीं करते हैं, that means in rest of world आपका प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, और जब आपका प्रोडक्ट वहां पे नहीं पूछेगा, आपकी competitiveness दुनिया में कम हो जाएगी. तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए you will have to use what? Machines, right? Okay, all right. So okay, so give me a minute. Examples. ठीक है, what are the examples of these industries? कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. तो क्या होते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज? ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे आप ज्यादा लेबर को यूज करते हैं. ओके, मशीन्स को यूज करते हैं, बट वेरी वेरी few machines are used, and maximum work is done by the labor. Example, textiles, gems and jewelries. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन इज देयर, leather, footwear. These are some industries which are very very important. These are labor intensive industries. इनमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, बट दे आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. They are very important for employment generation in India. Now, what are other industries? That is capital intensive industries. So it is the against of labor. Here, what we do is we use more machines and money than labor. रिमेंबर दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज़्यादा मशीन्स, ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है, और वहाँ पे लेबर बहुत कम यूज़ होता है. इसके फीचर्स क्या हैं? हाई यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन. सो इन इंडस्ट्रीज में मशीन्स का बहुत रोल होता है. मशीन्स या ऑटोमेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्रीज. ठीक है, एंड सिंस यहाँ पे आप बहुत टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यू विल रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट, एंड इसमें लेबर जो है बहुत कम जरूरत पड़ता है. से फॉर एग्जांपल वी विल रिक्वायर 1 to 2 people to operate a particular machine, which will give us, say for example, 50 cars per day. सो हमारे पास इसमें लेबर बहुत कम होता है, एंड याद रख लीजिए इसमें जितना भी लेबर यूज होता है, दे आर हाईली स्किल्ड, and since we use machines, your productivity is more. Remember, the productivity means the rate of production per hour, या per day, या per month. All right. Okay, examples क्या है हमारे पास? We have steel plants in India, we have oil refineries, automobile manufacturing, power plants. These are all capital intensive industries. Remember, we use labor here, but very few labor, and that labor has to be more skilled than the labor which is used in labor intensive industries. ओके, अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? द सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे यहाँ पे है, एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे ज्यादा होती है. एफिशिएंसी एंड आउटपुट. एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप जितना भी आउटपुट बनाते हैं, इसका इसमें आप लेस वेस्टेज जनरेट करते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल, टू कट ए स्टील पीस ऑफ स्टील, ये पीस ऑफ स्टील है, फॉर एग्जांपल आपको इसमें एक डिजाइन निकालना है, एंड डिजाइन इज लाइक दिस फॉर एनी पार्ट ऑफ ए कार. फॉर एग्जांपल, अगर ये डिजाइन एक इंसान निकालता है, manually you do it, it will take a lot of time and more wastages. And if same design is being done through a machine, through a laser cutting machine, it will be done in a very less point of time, and there will be less wastages. इसी को हम बोलते हैं high efficiency. And output भी बहुत जल्दी निकलता है इसमें, because you are using more machines, more automation, and highly
highly efficient technology. You will create more better quality of products. It will have the global competitiveness of the products that you made. That means अगर आप machines use करते हैं, if you use technology, you will be able to create more goods, high quality goods, but remember, you will not be able to create employment. इसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं होती है. यस, इट विल सपोर्ट योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ सकती है. Now, what are the disadvantages? I already told you the first disadvantage is that low employment generation. क्योंकि किसी भी मशीन को चलाने के लिए you need only 2 to 3 people, and that machine will give the work up, say for example 50 people. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती है. कहाँ पे? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में. एंड इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, हाई कॉस्ट, एंड आल्सो इट कैन इंक्रीज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी मतलब दैट मींस यू आर प्रेफरिंग मोर machines. Machines will ultimately replace humans, and when humans are being replaced, there will be no jobs. When there will be no jobs, they will earn nothing, and it will lead to more poverty. It will lead to more poverty. And those who run these machines are the owners, or the businessmen, and they will have more and more money. It simply means rich becomes richer and poor becomes poorer. That is the concept of inequality here. All right. Okay. Now, the important topic for your means is इंडिया में. अगर आपसे कभी पूछा गया किसी ने कि इंडिया को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, रिमेंबर वन शॉर्ट आंसर इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रीजन इज कि इंडिया में लेबर इंटेंसिव इसलिए जरूरी है. फर्स्ट, because India में we have huge number of population. The population of India is very huge, and we have huge number of labor force. ठीक है. और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो विंडो है अभी बहुत बड़ा है. अभी 2040 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है. ये एक अलग टॉपिक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इट इज अराउंड 65%. यानी कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रुप है, दैट इज दोज हु आर वर्किंग इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64. हाउ मच आर दे? 65% of population in India are working. So you need, for that huge amount of population, there should be some industries जो उन लोगों को absorb करे, jobs provide करे. Remember one more thing, मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, that एक रिपोर्ट आया है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, इफ आई रिमेंबर इट एग्जैक्टली. सो इट सेड दैट इंडिया में 45% जितने भी नए ग्रेजुएट्स होते हैं, सॉरी जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं, उसमें 45% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल. अनएम्प्लॉयबल मतलब वो ऐसे होते हैं कि उनको कोई जॉब नहीं मिल सकती है. क्यों? द रीजन इज दे आर नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स. उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है. सो हाफ ऑफ चंक ऑफ द ग्रेजुएट्स डू नॉट गेट अ जॉब इन इंडिया. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है. तो ऐसे लोगों को अगर आप जॉब्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, वेयर दे विल गो? They will remain kind of unemployed for whole of their life. So to provide them a sort of good opportunities, you will set up what? Labor intensive industries. This is the first reason. Now, second reason why India needs labor intensive industry is that they will generate more jobs per unit of investment. Simply, agar if 1 rupee is invested in capital intensive industry, it does not create that much of job if that same 1 rupee is invested in labor intensive industries. और ये labor intensive industry जो है, they are also known as MSMEs, and these MSMEs create 30% of GDP of India, and they provide 11 crore jobs in India. Okay, all right. See, I'll give an example. Say, for example, we are making cars in India.
remember, this car will be manufactured in capital intensive industry, किसी बड़ी factory में जहाँ पे automation will be used, robots will be used. But do you know that the steel which is used in this car, it will be extracted using labor? Of course, the raw material इस कार में जो जाता है वो कहाँ से आएगा? That is all that is coming from these labor intensive industries. The rubber, वो कहाँ से आया? वो कोई ग्रो कर रहा है रबर प्लांट से? आपको समझ आ रहा है? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो एमएसएमई जो है ये एक्चुअली आपका बैकबोन बनता है किसी भी इकोनॉमी में. अनदर रीजन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? देखिए, इंडिया में एक और प्रॉब्लम है. इंडिया में जितने भी लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं, दे आर अराउंड 45% ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया में 45% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर में. और एग्रीकल्चर कितना जनरेट करता है? 15 to 18%. इस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए यू विल हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है. कि अगर आपके पास एक खेत है, इस खेत में एक इंसान अच्छे से काम कर सकता है, एक इंसान का काम निकलता है दिन में. लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि अगर एक बंदा घर से खेत को जाता है, उसकी बीवी भी साथ जाती है, उसके दो बच्चे भी जाएंगे, वो करेंगे कुछ नहीं. उसकी बीवी या दो बच्चे वो करेंगे कुछ नहीं, बस वो वहां पे बैठेंगे. और हमें लगता है कि ये चारों पांचों मिलके काम कर रहे हैं. एंड अल्टीमेटली जो काम करेगा वो एक ही बंदा है, और तीन चार जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा हेल्प उसको करेंगे कभी. बट अल्टीमेटली उसकी उनकी कंट्रीब्यूशन उतनी नहीं होगी जितने एक बंदे की होती है. इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? ये इंडिया में है. और किस सेक्टर में हमें ज्यादा मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास 45% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, अभी भी डिपेंडेंट है. और कितना कमाते हैं? 18%. तो समझ लीजिए 45 लोग, they are earning 18 rupees. That means not even 50 पैसा per person they are able to gain. So ये जो एक्स्ट्रा लोग एग्रीकल्चर में है, अगर आप उनको निकालते हैं और उनको कुछ छोटी मोटी जॉब्स देंगे, तो ये जॉब्स कहाँ पे क्रिएट होंगे? ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में क्रिएट होंगे. सो वी कैन हेल्प दैट, वी कैन शिफ्ट द लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर जिसको फार्म्स टू इंडस्ट्रीज. एंड दिस शिफ्ट कैन बी ओनली पॉसिबल अगर आपने वो इंडस्ट्रीज लगाई है जहां पे लेबर ज्यादा काम करेगा. ठीक. एंड वन मोर topic, sorry, one more importance why labor industries are important in India is that you can set up these industries, you can set up these small industries in rural areas or semi urban areas, so that there is a migration pattern in India कि रूरल एरिया से लोग निकल के कहाँ जाते हैं? वो सिटीज में जाते हैं. और सिटीज में अपना एक प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर ऑन एवरीथिंग. लाइक अगर आप देखेंगे लोग सिटीज में बहुत भीड़ होती है, सो वो प्रेशर भी कम हो सकता है, सिटी के रिसोर्सेज पे भी प्रेशर कम रहेगा. एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन द रीजनल डेवलपमेंट. ऑलराइट. ओके. एंड अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट लीस्ट कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, it is important also because the people here have low skill jobs, and these labor intensive industries will provide the jobs जिनमें ज्यादा skills की जरूरत नहीं होती है. उससे क्या होगा? आपका जो इंडिया की पॉपुलेशन का बॉटम वाला पोर्शन है यहाँ पे, these are those people who are very poor people, they will have a better level of employment than they are having in agriculture. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, दिस employment led growth is the की फॉर पॉवर्टी रिडक्शन. देखिए यहां से मैं फिर से आपको एक बार लास्ट में बताना चाहता हूं कि आप ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हैं. सी, ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी को बढ़ाना. रिमेंबर इट, ग्रोथ सिंपली मींस यू ग्रो योर जीडीपी. Growth simply means that you will grow your GDP. And to grow this GDP, you have two options. One, you can use capital intensive industries. आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगे जिसमें ऑटोमेशन होगा, ये भी ग्रोथ हो जाएगा, इससे भी जीडीपी बढ़ेगा. लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी. उसको हम बोलते हैं
जॉबलेस ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, जो कि इंडिया में अभी चल रही है। देखिए इंडिया में देखो जीडीपी कहाँ पे है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है हम, लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल देखेंगे तो वी हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर जीडीपी? दैट इज यू कैन हैव labor intensive industries. That means you will set up those companies, those factories where labor is more used, this labor will ultimately increase your gdp, and it will also help in increasing the employment opportunities. And this is the best way that you can tackle the poverty. So does it mean that India should not focus on capital intensive industries? No, India should focus more on labor intensive industries, but also capital intensive industries. ठीक। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।